Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management Technology, Department BCA, second semester, Unit 3. Now we are discussing about the number system, which is related to Unit 3. Number system are the technique to represent numbers in the computer system architecture. Every value that you are saving or getting into from the computer memory has a defined system. बेसिकली स्टूडेंट अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम. इफ़ वी प्रेस या इफ़ वी राइट एनी वर्ड और एनी लेटर इन द कंप्यूटर कीबोर्ड, it will represent a binary system. Computer accept only binary numbers. Computer architecture supports following number system: binary number systems, octal number systems, decimal number system or hexadecimal number system. These four number system are support the computer. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. अ बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 digit that are 0 and 1. Every number value represent with 0 and 1 in the number system. The base of binary number system is 2 because it has only 2 digit. बेसिकली बेटा हम जो यूज़ करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर में कीबोर्ड में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है. डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, क्योंकि वहाँ पे 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं. बट कंप्यूटर जो यूज़ करता है वो सिर्फ बाइनरी सिस्टम को यूज़ करता है. बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, 0 and 1. बाइनरी का मतलब ये होता है 2 नंबर सिस्टम. सेकेंड वन इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 7. Every number value represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 in the number system. The base of octal number system is 8 because it has only 8 digits. Next is बेटा decimal number system, जो मैंने आपको पहले बताया था. Decimal number system has only 10 digits, 0 to 9. Every number value represents with 0 to 9 in this number system. The base of octal decimal number system is 10 because it has only 10 digits. Next one is hexadecimal number system. A hexadecimal number system has 16 alphabetic value from 0 to 9 and A to F. Every number value represent with 0 to 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. In this number system, the base of hexadecimal number system is 16 because it has 16 alphabetic value. Here A is 10, capital B is 11, capital C is 12, capital D is 14, capital E is 15 and capital F is 16. And these are the examples which we are displayed on the screen. Let's see use digits examples. देखिए यहाँ बाइनरी है. बाइनरी में बेस मैंने आपको बताया था कितना होता है 2. इसमें क्या यूज़ करते हैं हम 0, 1 यूज़ करते हैं. और these are the example of the binary number system. This is the octal. octal में क्या बेस होता है 8. नंबर यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और जैसे एग्जांपल दे रखा है 360, जो नीचे लिखा है 8. दिस विल रिप्रेजेंट द विच नंबर सिस्टम वी आर फॉलोड. डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस कितना होता है 10, 0 to 9 यूज़ करते हैं. विद एग्जांपल 240 यहाँ पे बेस लिखा है बेटा 10. हम अपनी डेली लाइफ में जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम. हेक्साडेसिमल में बेस होता है कितना 16. इसमें यूज़ क्या करते हैं हम 0 to 9 एंड A to F. 0 to 9 and A to F. A will be represent 10, B 11, C 12, D D कितना होता है हमारे पास, D is 14, E is 15 and F is 16. यहाँ लिखा है F0, तो इसका बेस कितना है 16. इसका मतलब ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. नाउ वी आर स्टडिंग द कन्वर्जन. हाउ कैन वी कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम इन ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल and vice versa. First of all, we will convert the decimal number system into binary. Decimal number system to the other bases. The convert number system from decimal number system to any other basis is quite easy. We can follow the steps. First of all, we have given a decimal number 1, 2, 3, 4, 5. इस डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हमें नंबर्स को डिवाइड करते चले आना है किससे 2 से. 2 से डिवाइड करते चले आएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट डाउन करेंगे. This is a way by which we can convert the decimal number into binary. See 1, 2, 3, 4, 5. हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 को डिवाइड किया 2 से. जब 1, 2, 3, 4 को 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1. 1 को हमने क्या किया नोट कर लिया.
See, this is the highlighted area in which we have converted the decimal number into binary system 1 2 3 4 5। ये जो 1 2 3 4 5 है, इसको हमने जब 2 से डिवाइड किया तो बेटा रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया 1672 6172। 6172 को अगेन हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0 और क्वोशंट आया 3086। बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्वोशंट लिखते चले जाएंगे और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये रिमाइंडर हमारे पास कब तक आएगा, जब तक हमारे यहाँ पर बेस हमारे यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। इट मीन्स 2 1 जा 2 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 1। और इस वाले पार्ट को हम रिवर्स वे में लिखेंगे। रिवर्स वे मीन्स सबसे पहले लिखा जाएगा 1, फिर अगेन 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1। देखिए ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम का आंसर डिस्प्ले हो रहा है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके नीचे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 8। तो हमने इसको किससे डिवाइड किया, 8 से डिवाइड करते चले आएंगे। क्वोशंट लिखेंगे नीचे और बेस लिखेंगे साइड में। आई जस्ट हाईलाइट द एरिया इन विच वी हैव फॉलो द रूल बाई विच वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। 1 2 3 4 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 1543 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। अगेन 1543 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, नाउ वी विल गेट क्वोशंट एज 192 एंड रिमाइंडर इज 7। इस तरह से हमारे रिमाइंडर आते चले जाएंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। रिवर्स फॉर्म में लिखने के बाद साइड में क्या लिखेंगे हम, 8। देखिए यहाँ पे 8 रिप्रेजेंट है। ये जो 8 है ये डिपेंड करती है, दिखा रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि हमने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर में हमारा बेस कितना होता है, 16। हमने क्या किया, यहाँ पे 16 से डिवाइड करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 जब 16 से डिवाइड किया हमने तो हमारे पास 771 क्या है, क्वोशंट, एंड 9 विल बी द रिमाइंडर। अगेन 771 को जब हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट आया 48 एंड रिमाइंडर विल बी 3। 16 को डिवाइड किया 48 से, 3 हमारा क्वोशंट है, 0 रिमाइंडर है, एंड अगेन 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। इसको रिवर्स फॉर्म में लिखा हमने 3039। 3039 को जब हमने रिवर्स फॉर्म में लिखा तो बेस में क्या लगाया, 16 लगा दिया। दिस इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं हम जिसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर 9 से ज़्यादा आना चाहिए। अब देखिए हमने लिया 725, जिससे कि हम यूज़ कर सके ABCD कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक, हमने क्या किया यहाँ पे 725 लिया, 16 से डिवाइड किया, 45 आया बेटा और रिमाइंडर कितना आया 5। फिर 16 को जब डिवाइड करेंगे 45 से तो 2 तो क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा 13 और 2 एज इट इज़। हमने ऊपर पढ़ा था कि हम कन्वर्ट करते हैं तो जब 9 से ज़्यादा रिमाइंडर आता है तो उसको हम एक अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2। ठीक है, हमारे पास 5 13 और 2, इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे लेकिन 13 की जगह पे D लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि हमने 10 को A कंसिडर करना है, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। नाउ दिस इज़ अ रिवर्स क्वेश्चन in which we have converted the binary number into decimal number. We have binary number 1 1 0 1 1 0 0 1। इस बाइनरी नंबर को हमने क्या किया, ये हमारे पास पूरा का पूरा बाइनरी नंबर गिवन है। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया मैंने एरिया। इसमें बाइनरी नंबर में क्या किया हमने, जो हमारे पास स्टार्टिंग का 1 था इसमें हम क्या करेंगे, रिवर्स लेंगे। रिवर्स का मतलब सबसे पहले यूनिट प्लेस को लेंगे और आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना। देखिए हम रिवर्स से लेंगे 1 0 0 1 1 0 1 1 और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये वाला 1 है इसको 2 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 6, 2 रेज़ टू द पावर 7। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया हुआ है और जिनको जब सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1 0 0 8 16 0 64 28 और इस पूरे नंबर को ऐड कर देंगे। जो ऐड करके नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। इसके नीचे हम ब्रैकेट के नीचे क्या लगाएंगे, नीचे 10 भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक माना जाएगा। नहीं लगाते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेसिमल नंबर ही कंसिडर होगा। नेक्स्ट वन, बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए ये भी बहुत ईजी वे टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू द ऑक्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 3 3 के ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं हम। हमारे पास नंबर था 1 1 1 0 0 1 0 1, तो हम पीछे यानी कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 101 का एक ग्रुप बन गया, 100 का एक ग्रुप बन गया और 11 का एक ग्रुप बन गया। ठीक, अब जब इनका ग्रुप बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इनके हमें पूरा ग्रुप कंप्लीट करना है तो जो हमारे पास थर्ड ग्रुप बना हुआ है 1 1 का, उसके आगे क्या लगा देंगे हम, 0 लगा देंगे। नाउ सी, अगर हमारे पास 0 0 0 कहीं भी बाइनरी नंबर का ग्रुप बनता है तो उसका ऑक्टल में आंसर होता है 0। अगर हमारे पास बाइनरी में 0 0 1 का ग्रुप है तो उसका आंसर क्या होता है 1। 0 1 0 का ग्रुप है तो क्या होगा 2,
011 का ग्रुप है तो 3, 100 का ग्रुप है तो 4, 101 का ग्रुप है 5, 110 का ग्रुप है 6, 111 का ग्रुप है तो आंसर आएगा 7। इसके अलावा आपके पास कोई भी बाइनरी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखो नीचे टेबल में बाइनरी और ऑक्टल लिखा है। बाइनरी में 011 है तो इसका आंसर 3 हो गया एज़ पर द टेबल। ऊपर देखो टेबल में 100 है तो उसका 4 होता है, 101 का क्या हो गया 5। इन तीनों को ऐड कर देंगे 345, दैट इज़ अ ऑक्टल नंबर। नाउ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में स्टेप हमारे पास ऑक्टल वाले ही हैं, बट वहाँ पे 3 का ग्रुप बनता था, यहाँ पे 4 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो नंबर था 111, 00, 101, तो हमने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं, 110 और 0101। ठीक है, आपको ग्रुप समझ में आ रहे हैं। अब आपके पास जो समझना है वो बताया था कि आपके पास जैसे हमने ऑक्टल के अंदर एक टेबल बनाई थी कि ये वाला ग्रुप बनेगा तो ये वाला नंबर आएगा, तो उस नीचे इसमें देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 4 टाइम्स 0 का तो 0 आंसर लिख दो, ट्रिपल टाइम 01 यानी 001 होगा तो 1 लिख दो, 0010 लिखेंगे तो 2, 0011 लिखेंगे तो 3, 0100 लिखेंगे तो 4। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल में आएगा। अगर इनकेस 1000 का ग्रुप बनता है तो 8 लिखेंगे, 1001 का ग्रुप लिखेंगे तो 9, 1010 का ग्रुप आएगा तो क्या लिखेंगे A। लेकिन हमारे पास जो ग्रुप है बेटा वो है कौन सा है 1110, और 1110 का ग्रुप कहाँ पे लाई करता है 1110। अब देखो ये रहा E, यानी कि हमारे पास E इसके अंदर पुटअप हो चुका है। उसके बाद अगर बात करते हैं 0101 की तो उसके लिए 5 आएगा, तो आंसर आ गया E5, दैट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे देखिए ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको ऑक्टल नंबर दे रखा होगा और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 345। अब जो हमने टेबल ऊपर पढ़ी थी उसी टेबल का आप वापस रिवर्स यूज़ करेंगे। रिवर्स यूज़ कैसे, देखिए इस वाली टेबल का हम यूज़ करेंगे और इस वाली टेबल का जब यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास 000 गिवन होगा तो हम क्या लिख देंगे 0, और अगर 0 गिवन होगा तो क्या लिख देंगे 000। लेट सपोज ऑक्टल में हमारे पास 1 दिया हुआ है तो हम बाइनरी में 001 लिख देंगे। अगर ऑक्टल में 4 गिवन है तो बाइनरी में 100 लिख देंगे। फॉर्मूला क्वेश्चन था हमारे पास 345। ये जो 345 हमको गिवन है, अगर मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 345 3 का क्या होता है 011, 4 का होता है 100, 5 का होता है 101। अगर हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारा बाइनरी नंबर आ जाएगा। यही चीज़ हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी अप्लाई करना। नाउ सी, ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है कि अगर हमें बाइनरी के अंदर ग्रुप मिले 4 टाइम्स 0 तो हम 0 लगा दें। अगर हेक्साडेसिमल के अंदर कहीं पे 3 लिखा हो, जैसे हेक्साडेसिमल में यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो बाइनरी में उसका आंसर होता है 0011। अगर हेक्साडेसिमल में हमारे पास 6 लिखा है तो बाइनरी में उसका एग्जांपल है 0110। अगर कहीं पर हेक्साडेसिमल में आपको D लिखा नज़र आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा 1101। ये टेबल आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि एक बार टेबल लर्न करोगे उसके बाद आपको कन्वर्जन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखिए यहाँ था 11110 अगर बाइनरी में है तो हेक्साडेसिमल में 5 होगा, और अगर हेक्साडेसिमल में 5 होता तो उसका बाइनरी में 111 बन जाता। और यहाँ पे क्या है 00101 को हम क्या लिखेंगे 5, तो आंसर क्या हो गया E5 हेक्सा। हेक्सा का मतलब है हेक्साडेसिमल। नाउ ऑक्टल टू डेसिमल। अगर हमें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे 345। देखो 345 हमें दे रखा है 345। हम रिवर्स चलेंगे, जैसे हमने बाइनरी की फॉर्म में किया था, बाइनरी को डेसिमल में जब कन्वर्ट किया था, यहाँ पे ऑक्टल को डेसिमल में करना है। तो जो 5 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8⁻0, जो 4 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 8⁻1, और जो 3 है उसको कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 8⁻2 से। और फाइनली जो इसका आंसर आएगा सबका सॉल्यूशन के बाद उनको ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 229। ये एक डेसिमल नंबर बन गया हमारे पास कि हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया।